Yes. So firstly, chapter is federalism. Okay. Now, as you can see on the very first page, before this time is 8:21 and still some students are joining now. Last one, Sukhman Kaur Haliyat. 6 minutes you are late. Tomorrow onwards, I am not going to admit those students who come late. Hanji, so now in this chapter, we have to study ki what is the meaning of the term this federalism, how does it work, what are its features, how do we see the practice of this federalism in our own country. It is very interesting to know and read in this lesson. हमारे अपने country में in India we see this type of federalism. Okay, so here we have to go ahead with that. Now, in the last lesson, power sharing chapter, we have read about two countries. One of the student has not unmuted himself or herself. Please mute yourself. Otherwise, you will be removed. Yes, beटे. Ishika, mute yourself. Yes. Hanji. So in the last lesson we have read, as you can see in this first para, I am starting from here. So in the last lesson we have read that there were various problems in Sri Lanka and Belgium, but Sri Lankan government did not pay attention to solve those problems in a correct way, and as a result civil war appeared in that country, and it took lives of thousands of people in that country. Many people got killed, and there was we can say restlessness among the people of that country, okay? Because there was no proper solution. Then on the other side, in Belgium country, what was there? They amended their constitution four times in the sense कि जब तक उनको लगा कि अभी settlement नहीं हुई है, still improvement is required, they kept on changing, they kept on improving their this constitution. ठीक है? तो अब क्या है? अब यहाँ पे now you please read and underline here कि जो रीजनल गवर्नमेंट्स थी बेल्जियम में, वहाँ पे आपने लास्ट लेसन में पढ़ा ना अमेंडमेंट्स में कि सेंट्रल गवर्नमेंट उनकी जो थी बेल्जियम की, many powers were there with central government and as well as जो रीजनल गवर्नमेंट थी वेलोनिया रीजन की या दूसरे रीजन की, फ्लेमिश रीजन की, फ्लेमिश लोगों की, तो उनको भी बहुत सारी पावर्स दी गई. तो अब यहाँ पे है कि all these powers were given, see you can see here in the middle of this para, all these powers were given to these governments and could be withdrawn by central government. मतलब 1993 से पहले whatever powers were given to the regional governments, जो लोअर लेवल के ऊपर गवर्नमेंट्स थी, उनको जो भी पावर्स दी हुई थी दे कुड बी विदड्रॉन, मतलब उनको वापस लिया जा सकता था बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ बेल्जियम कंट्री. तो अब इसका मतलब फिर पावरफुल कौन हुआ? सेंट्रल गवर्नमेंट. जो पावर दे के उसको वापस ले सकती है, इट कैन टेक बैक, तो दैट मीन्स दैट गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल. तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ बेल्जियम वाज मोर पावरफुल बिफोर 93. बट आफ्टर 93 व्हाट डिड दे डू? Change that took place in 93, you can see here, was that regional governments were given constitutional powers that were no longer dependent on central government, and Belgium shifted from a unitary to federal form of government. मतलब अब जो 93 के बाद आफ्टर मेकिंग द इम्प्रूवमेंट्स और अमेंडमेंट्स, नाउ द पावर्स विच वर गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट्स या उनकी जो भी रीजनल गवर्नमेंट्स थी, अब उनको वापस नहीं लिया जा सकता था. मतलब दे वर गिवन फ्रीडम टू सम एक्सटेंट कि वो भी अपना इंडिपेंडेंटली अपने हिसाब से काम कर सकें. दिस टाइप ऑफ फ्रीडम वाज गिवन टू देम. अब उनकी पावर्स को एकदम से जो उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट थी दैट वाज नॉट एबल टू टेक दोज पावर्स बैक. इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो रीजनल या स्टेट गवर्नमेंट थी उनको भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, उनको भी अपने बराबर रखा गया. जब हमने पीछे लेसन में पढ़ा था कि इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स वर केप्ट, है ना, तो ये उसी तरीके से है कि जो रीजनल या स्टेट गवर्नमेंट थी बेल्जियम की, अब उनको जो पावर्स दी गई, अब सेंट्रल गवर्नमेंट उनको एकदम से वापस नहीं ले सकता था. इस करके अब क्या हो गया? नाउ जो बेल्जियम कंट्री है, यू प्लीज अंडरलाइन हियर, इट शिफ्टेड फ्रॉम ए यूनिटरी टू ए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. यूनिटरी गवर्नमेंट होती है, यूनिटरी यूनिट वर्ड से बना है. यूनिट मीन्स, यूनिटरी गवर्नमेंट मीन्स कि ऐसा कोई गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर जिसमें देर इज ओनली वन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड दैट इज द मोस्ट पावरफुल सेंट्रल गवर्नमेंट.
उसके बराबर पावरफुल कोई नहीं है। एंड रेस्ट ऑफ जो भी स्टेट्स होती हैं कंट्री के अंदर या प्रोविंसेस होती हैं, दे आर डिपेंडेंट, दे आर सबॉर्डिनेट टू दैट सेंट्रल गवर्नमेंट। सबॉर्डिनेट होता है किसी के अधीन रह के, किसी के नीचे रह के काम करना, उसके अंडर रह के काम करना। तो पहले जो था 93 से पहले बेल्जियम एक यूनिटरी फॉर्म वाला कंट्री था, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कि भी जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट वाज मोर पावरफुल। बट आफ्टर 93 अमेंडमेंट्स के बाद क्या किया गया, अब जब उनके जो डिफरेंट स्टेट या रीजनल उनकी गवर्नमेंट थी उनको भी बराबर की पावर्स दी गई। दैट मीन्स नाउ दैट कंट्री शिफ्टेड फ्रॉम यूनिटरी टू फेडरल फॉर्म। फेडरल फॉर्म का मतलब होता है कि ऐसी गवर्नमेंट, ये भी हम आगे करेंगे, जिसमें सेंटर को भी इंपॉर्टेंस है, सेंटर के साथ साथ जो उसके कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं, कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स मतलब उसकी जो स्टेट्स हैं, दे आर ऑल्सो हैविंग इक्वल पावर्स। ठीक है, तो जब मतलब इक्वल टाइप ऑफ इम्पोर्टेंस ऐसे कह सकते हैं कि दोनों ही इम्पॉर्टेंट हो जाए, जिसमें स्टेट भी इम्पॉर्टेंट हो जाए, सेंटर भी इम्पॉर्टेंट हो जाए, दैट स्ट्रक्चर, दैट फॉर्म इज कॉल्ड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अभी डिटेल में आगे हम मीनिंग करते हैं नाउ। बट ये जो सिस्टम था दैट वाज नॉट अडॉप्टेड इन श्रीलंका। वहाँ पर वो आपस में लड़ते झगड़ते ही रहे, उन्होंने दे डिड नॉट पे अटेंशन टू ब्रिंग एनी टाइप ऑफ चेंज कि भी सब लोगों को पीसफुली रखा जा सके, दे डिड नॉट पे अटेंशन। बट बेल्जियम कंट्री में उन्होंने अटेंशन पे कर ली कि भी हाँ जी, इफ़ वी अडॉप्ट दिस टाइप ऑफ सिस्टम तो हमारी मेनी प्रॉब्लम्स कैन गेट सॉल्व। ठीक है, तो अब नाउ कम टू सेकेंड पैरा, दिस पैरा please underline here the definition of the term federalism is given. If federalism is a system, please underline, system of government in which the power is divided between a central authority and various constituents of the constituent units of the country. Usually a federation has two levels of government. One is government for the entire country, that is responsible for few subjects of common national interest, and others are governments at the level of provinces or states that look after much of the day-to-day administration या administering of their state. ठीक, all lines are very important, but still if 1 mark में question आता है तो first line is enough for 1 mark type answer. ये वाला जिसमें power is divided between central authority and various constituent units. मतलब ये कि ऐसा system government का जिसमें एक होती है, पहले तो आप ध्यान से देखो, इससे one thing which we come to know कि दो system मतलब दो type की governments आ जाती हैं. One is central government, सेंट्रल अथॉरिटी मीन सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेकंड होती है स्टेट गवर्नमेंट्स। ठीक है, भी जो कंट्री है, कोई भी कंट्री हो सकता है, उसमें एक होगी सेंट्रल गवर्नमेंट, वो होगी, और साथ ही साथ उस कंट्री के अंदर होगी बहुत सारी स्टेट की गवर्नमेंट्स, जितनी भी स्टेट्स है वहाँ पे उतनी गवर्नमेंट्स होंगी उनकी। और क्या होगा, पावर इज डिवाइडेड। जो पावर है, पावर मतलब पावर टू वर्क, पावर टू फंक्शन, पावर टू टेक डिसीजंस रिगार्डिंग द सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इश्यूज ऑफ द कंट्री, जो भी लॉज हैं, लॉज बनाने की पावर, कानून बनाने की पावर, तो वो पावर डिवाइडेड होगी किसके बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स का मतलब कि कंट्री के अंदर आने वाले अलग, कंस्टिट्यूएंट होता है हिस्से, जैसे हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ बॉडी, तो हम उसको ये भी बोल सकते हैं कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ अवर बॉडी। जब हम कहते हैं हेड, आईज, ईयर्स, हैंड, फीट, लेग्स, आर्म्स, तो हम क्या कहते हैं, दीज आर द पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी। तो उसी को हम ये भी कह सकते हैं दीज आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ अवर बॉडी, कि हमारी बॉडी के ये हिस्से हैं। तो ऐसे ही अब कंट्री के हिस्से कौन से होते हैं, उसकी स्टेट्स, जैसे हमारे कंट्री के कंस्टिट्यूएंट्स यूनिट्स कौन से हैं, ये पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, बंगाल, वेस्ट बंगाल, असम, ये सारी जो स्टेट्स हैं वो सारे कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं। तो पावर दोनों के बीच में डिवाइड होती है, और क्या होता है, एक गवर्नमेंट होती है सेकेंड लाइन में, वन इज द गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री। भी एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पूरे कंट्री के, एंटायर मतलब होल ऑफ द कंट्री, वो सारे कंट्री की गवर्नमेंट है, वो उसका रूल सबके ऊपर है। जैसे हमारी जो सेंटर की गवर्नमेंट है न्यू दिल्ली में, ठीक है, पूरे कंट्री की गवर्नमेंट है, जो मोदी गवर्नमेंट है दैट इज फॉर द होल ऑफ द कंट्री, वो सेंट्रल गवर्नमेंट है। और उसके साथ अब उसके पास क्या होता है, दे हैव फ्यू सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर या वी कैन से जो कॉमन नेशनल इंटरेस्ट की चीज़ें होती हैं, जैसे हमारे कंट्री की डिफेंस है, हमारे कंट्री की करेंसी है, हमारे कंट्री का कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, हमारे कंट्री का फॉरेन कंट्रीज़ के साथ कैसे रिलेशंस होने चाहिए, फॉरेन अफेयर्स हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें, दे आर विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब सेंटर उसके बारे में डिसीजन लेगा। एंड जो डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं, डे टू डे ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन,
कि रोज़मर्रा की जो भी लोगों की रिक्वायरमेंट्स हैं कंट्री के अंदर, जो भी सिस्टम हमें चाहिए, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। जैसे पंजाब में हम लोग वी आर इन पंजाब, तो पंजाब का जो भी लोकल प्रॉब्लम्स होंगी तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? पंजाब गवर्नमेंट, ठीक है। ऐसे ही हरियाणा की जो लोकल उनकी अपनी स्टेट की अपनी प्रॉब्लम्स होंगी उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हरियाणा की गवर्नमेंट, या ऐसे ही सारी गवर्नमेंट, स्टेट की गवर्नमेंट अपनी अपनी स्टेट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है उसका एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए, दैट इज स्टेट गवर्नमेंट। और जो पूरे कंट्री को एक साथ इकट्ठा रखने के लिए और कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, उसके लिए हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? दैट इज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट। नाउ प्लीज़ कम टू द नेक्स्ट पेज। एज यू कैन लेटर ऑन सी दिस मैप, ये रेड कलर सा दिया हुआ है ना, ये ऊपर लिखा हुआ है फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम, इंडेक्स में दिया हुआ है। तो ये दिस इज द वर्ल्ड मैप। तो यहाँ पर देखो जितने ये सारे रेड कलर से इंडिकेट किया हुआ है, ये इसका मतलब इन सभी कंट्रीज में फेडरल स्ट्रक्चर है। फेडरल स्ट्रक्चर इन द सेंस कि इन सभी कंट्रीज में एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, बाकी की उनकी रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, ये मीनिंग है इसका। नाउ प्लीज कम टू नेक्स्ट पेज। ये मैंने यहाँ तक अभी बताया था। नाउ इन दिस पैरा प्लीज अंडरलाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रॉम थर्ड लाइन ऑनवर्ड, यहाँ से फ्रॉम अंडर द यूनिटरी सिस्टम, यहाँ पर वी कैन गेट ए क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों का हमने पीछे डिस्कस किया। तो अब क्वेश्चन आता है कि भाई इस दोनों के में क्या डिफरेंस है। तो जो यूनिटरी गवर्नमेंट होती है, यू प्लीज अंडरलाइन, under the unitary system either there is only one level of government or sub units are subordinate to the central government, ठीक है। and central government can pass the orders to the provincial or local government, मतलब एक मेन गवर्नमेंट होती है, एक ही गवर्नमेंट होती है, ओनली वन लेवल, वो सेंट्रल की ही गवर्नमेंट होती है। अब जब सेंटर की ही गवर्नमेंट है तो बाकी जितनी भी उसके काम को हेल्प करने के लिए उसके नीचे जो भी गवर्नमेंट्स होती हैं, दे आर सबॉर्डिनेट, उनका कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता है। वो ये नहीं कह सकते कि हम अलग गवर्नमेंट है, स्टेट की अलग गवर्नमेंट है, अलग वर्ड यूज ही नहीं किया जा सकता। दे आर वेरी मच पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, उसी का ही पार्ट है, उसी का ही हिस्सा है। जैसे हम कहते हैं हमारे हैंड हमारी बॉडी का ही हिस्सा है, तो हैंड्स का एग्जिस्टेंस हमारी बॉडी से अलग तो नहीं है। अब हाथ काट के एक तरफ रख दो, है ना, टेबल पे रख दो हाथ काट के, तो अब वो किसके हैं? अब वो तो किसी के नहीं होंगे, ना ही वो काम कर सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है एक ही गवर्नमेंट होती है और वही मेन, जिसके पास मोस्ट ऑफ द पावर्स होती हैं, वही सब कुछ डिसाइड करती है। और बाकी की उसके नीचे जो भी गवर्नमेंट्स होती हैं वो उसका कहना मानती हैं, उसके ऑर्डर के बिना, उसके डिसीजन के बिना वो अपने आप से अपना इंडिपेंडेंटली, दे कैन नॉट डू एनीथिंग, they cannot take any decision, they cannot pass any law without the परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। कुछ पास कर ही नहीं सकते, बस उनको फॉलो करना होता है। सीधे वर्ड्स में हम कहें तो दे हैव टू जस्ट फॉलो द ऑर्डर्स। किसका ऑर्डर? सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो अगर ऐसा गवर्नमेंट का सिस्टम हो तो देन इट इज कॉल्ड यूनिटरी सिस्टम। और दूसरा क्या होता है, नीचे करके दिया हुआ है, बट इन ए फेडरल सिस्टम सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट्स टू डू समथिंग, स्टेट गवर्नमेंट्स हैज पावर्स ऑफ इट्स ओन फॉर विच इट इज नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, बट बोथ आर आंसरेबल टू पीपल। अब दूसरे का मीनिंग क्या है जो फेडरल फॉर्म का है, इसमें दो लेवल होते हैं, वन लेवल इज सेंट्रल गवर्नमेंट, वन लेवल इज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। फिर जो स्टेट की गवर्नमेंट्स हैं, नो डाउट उनको सेंटर के साथ मिलकर ही चलना होता है, दैट देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ दैट। बट जो इवन जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं, दे ऑल्सो हैव सम पावर्स टू पास सम लॉज रिलेटेड टू देयर ओन स्टेट, ठीक है। अपनी स्टेट से रिलेटेड कुछ भी, अपनी स्टेट की डेवलपमेंट से रिलेटेड, अपनी स्टेट की प्रोग्रेस से रिलेटेड कुछ काम, वो कुछ बातों से रिलेटेड वो डिसीजन खुद भी ले सकते हैं, ठीक। तो अब वो अपने आप डिसीजन ले सकते हैं, तो इस करके इसका मतलब है उनकी भी अपनी कोई अहमियत है, अपनी कोई इंपॉर्टेंस है, तभी उनको ये फ्रीडम है कि वो कुछ डिसीजन ले सकते हैं। तो मतलब हो गया कि दो लेवल के ऊपर गवर्नमेंट होती है, प्लीज सी द वर्ड लेवल। एक होती है सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट फॉर होल ऑफ द कंट्री, दूसरी जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं दे आर एट द सेकंड लेवल, लोअर लेवल। इफ यू रिमेंबर लास्ट लेसन में हमने किया था वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, तो ऐसे ही नंबर एक के ऊपर, टॉप के ऊपर सेंटर की गवर्नमेंट, उसके नीचे होती हैं स्टेट की गवर्नमेंट। बट स्टेट की गवर्नमेंट्स को कुछ पावर्स होती हैं टू पास लॉज रिलेटेड टू देयर ओन स्टेट, ठीक है, अपनी स्टेट से रिलेटेड वो कुछ काम कर सकते हैं। तो वो ऐसा जिस कंट्री में सिस्टम हो दैट इज कॉल्ड फेडरल सिस्टम। तो हमारे कंट्री में क्या है, इन आवर कंट्री वी आर ऑल्सो हैविंग, हमारे यहाँ भी स्टेट्स हैं, सेंटर है, स्टेट्स अपने अपने स्टेट से रिलेटेड काम कर सकती हैं, कानून बना सकती हैं कुछ बातों से रिलेटेड। तो हमारे यहाँ भी है, इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर है या फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या फेडरल सिस्टम है, वी कैन यूज एनी वर्ड।
Now in this here, please tick mark here, very important, that is ये लिखा ना, let us look at some of the key features of federalism. So please underline the word key features of federalism. Very important question from your final boards papers point of view. आमतौर पे ये क्वेश्चन आ जाता है कि क्या फीचर्स होते हैं, फेडरलिज्म किसको कहते हैं, मतलब किन किन फीचर्स को हम स्टडी करें तो हमें पता चल, किन बातों को स्टडी करें तो हम कहेंगे भी किसी कंट्री में देयर इज फेडरल सिस्टम या फेडरलिज्म है वहाँ पे। तो फर्स्ट क्या है, ऑलरेडी पॉइंट्स दिए हुए हैं यहाँ पे, वी विल गेट ए क्वेश्चन ऑल्सो कि व्हाट आर द की फीचर, की मतलब वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स, तो फिर ये पॉइंट्स को ही हमने लिखना है। तो फिर क्या है, देयर आर मोर देन 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, मोर लेवल्स और टीयर्स, TIER है ना, टायर नहीं कहना इसको, टीयर्स, भाई 2 या 2 से ज़्यादा लेवल भी हो सकते हैं। अब कौन से लेवल हो सकते हैं, लास्ट लेसन में हमने किया वर्टिकल डिवीजन वाले को, प्लीज ट्राई टू रिमेंबर क्या किया था उसमें। एक लेवल होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक लेवल होता है स्टेट गवर्नमेंट का, और एक और कई कंट्रीज में थर्ड भी लेवल बना देते हैं, जैसे अपने यहाँ भी है बनाया हुआ, दैट इज लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, बट वो जरूरी नहीं सभी कंट्रीज में लोकल गवर्नमेंट का हो, ये हर एक कंट्री की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। जैसे हमारा कंट्री इज़ वेरी वास्ट कंट्री, इतना बड़ा है कि यहाँ रिक्वायरमेंट है कि छोटे लेवल के ऊपर का के भी लोकल लेवल पे भी काम किया जाए, तो इस करके लोकल गवर्नमेंट। बट नॉर्मली हम अगर एक्सप्लेन करना हो तो वी विल से कि भी 2 या 2 से ज़्यादा लेवल्स भी हो सकते हैं। नॉर्मली जो पॉपुलर होते हैं दैट इज सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। फिर है different tiers, second point, different tiers of government govern the same citizen, but each tier has its own jurisdiction in specific matters of legislation, taxation, administration. Very important point, ये देखिए नीचे एक मीनिंग दिया हुआ है टर्म का jurisdiction. jurisdiction होता है एरिया ऑफ कंट्रोल, कि वो एरिया, वो काम जिनके ऊपर हमारा अपना कंट्रोल चल सकता है। ठीक, जैसे बिफोर कमिंग टू दिस पॉइंट, चलो पहले ये बता देती हूँ कि अब जो ये स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो किन लोगों के ऊपर रूल करते हैं, किन लोगों को गवर्न करते हैं। जैसे हम लोग हैं, मान लो क्या वी आर इन पंजाब, ठीक है, तो हम किसके अंडर आ रहे हैं, वी कम अंडर पंजाब गवर्नमेंट एज वेल एज वी कम अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। क्यों, क्योंकि पंजाब सेंटर इंडिया में है तो ऑब्वियसली उसके अंदर आते हैं। ऐसे ही मान लो तमिलनाडु है, कर्नाटक है, असम, अरुणाचल, जितनी भी हमारी स्टेट्स हैं सारी, तो हम सारे किसके अंदर आते हैं, अपनी अपनी रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स के अंडर भी आते हैं। अलॉन्ग विद दैट वी कम अंडर द इंडियन गवर्नमेंट ऑल्सो, मतलब हम अलग नहीं है। ठीक है, तो हम दोनों के नीचे आ जाते हैं, दोनों का मतलब दोनों गवर्नमेंट्स के नीचे हम जो सिटीजन्स हैं, आम लोग हैं, दोनों के नीचे हम लोग रहते हैं। ठीक, अच्छा, बट दोनों की जो ज्यूरिस्डिक्शन है वो अलग अलग है। ज्यूरिस्डिक्शन मतलब काम करने का जो दायरा है या एरिया ऑफ कंट्रोल है वो अलग अलग है। वो किस किस मामले में अलग अलग है, वो कोई लेजिस्लेशन है, लेजिस्लेशन होते हैं कानून बनाने। ठीक है, जैसे पंजाब सरकार है, पंजाब गवर्नमेंट है, तो ये पंजाब से रिलेटेड कानून बना सकती है जो पंजाब के लोगों को अफेक्ट करें। फिर टैक्सेशन है, लोगों से कितना टैक्स इकट्ठा करना है, टैक्स का कितना परसेंटेज होगा नहीं होगा, या एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है, कुछ एक मामले हैं। अब ये थोड़ा हम आगे डिटेल में करेंगे कि कैसे पता चले कि कौन कितने लेवल तक काम कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई गवर्नमेंट है तो वो कंट्री के अगेंस्ट जाके कानून बना दे, नो, दिस इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। ये हम थोड़ा आगे करेंगे, अभी थोड़ा हम लिमिटेड रखते हैं यहाँ पे, डिटेल बाद में आएगी। तो अब दोनों जो गवर्नमेंट्स हैं वो अपने अपने दायरे में रह के काम कर सकती हैं। ठीक, अच्छा, ज्यूरिस्डिक्शन आई वाज टेलिंग, जैसे आपका घर है ना, तो आपका घर, आपके घर के अंदर अंदर आप जो चाहे कर सकते हैं, दैट इज योर ज्यूरिस्डिक्शन, आपका वो एरिया ऑफ कंट्रोल है। आप अपने घर के अंदर जो मर्जी, जहाँ पे जो मर्जी चीज़ रखो ना रखो, उसको डेकोरेट करो ना करो, गंदा रखो साफ रखो, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन डू विद इन योर होम। क्यों, बिकॉज दैट कम्स अंडर योर ओन ज्यूरिस्डिक्शन, वो आपके दायरे में, आपके कंट्रोल के अंदर अंदर वो जगह आती है। ठीक है जी, अच्छा, ऑन दी अदर साइड, जैसे ही आप अपना गेट खोल के यू कम इन द स्ट्रीट, कम इन द लेन, अब लेन में आके, गली में आके आप कहो कि मैं यहाँ जो मर्जी कर लूँ, दैट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। वाई, बिकॉज दैट लेन बिलोंग्स टू ऑल द पीपल, सब लोगों को बिलोंग करती है, वहाँ से कोई भी निकल सकता है, कोई भी आ सकता है, जा सकता है। यू कैन नॉट स्टॉप एनी वन, आप किसी को रोक नहीं सकते, आप नहीं ये कह सकते कि मेरे घर के आगे से नहीं निकलना, मेरे घर के आगे गंदा हो जाता है, यहाँ से नहीं निकलना, यू कैन नॉट से दिस। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि वो आपका एरिया ऑफ कंट्रोल नहीं है। वो किसका एरिया ऑफ कंट्रोल है, वो गवर्नमेंट का है, क्योंकि वो पब्लिक लेन है, सब लोगों के लिए खुली हुई है, तो आप अपनी मर्जी नहीं चला सकते वहाँ पे।
आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो जहाँ पर अपनी मर्जी चल सकती है, दैट मीन्स दैट इज अवर एरिया ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, वो हमारे घर के अंदर अंदर है। तो ऐसे ही कमिंग टू दिस पॉइंट कि दोनों जो गवर्नमेंट्स होती हैं उनका काम करने का अपना अपना एरिया है, दोनों एक दूसरे को काट नहीं सकते हैं कि एक दूसरे के अगेंस्ट जाके काम करें, ऐसे वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, ज्यूरिसडिक्शन दे आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। यू कैन अंडरलाइन फर्स्ट सेंटेंस, पूरा नहीं करना है तो फर्स्ट लाइन को कर सकते हो। तो अब ये पता कैसे चले कि दोनों का एरिया ऑफ कंट्रोल कितना है, व्हाट इज देयर ज्यूरिसडिक्शन, कहाँ पर कितना काम कर सकते हैं। तो ये कहाँ दिया होता है, फेडरलिज्म वाले सेटअप में अगर ऐसा सिस्टम हो तो इट इज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में भी, ये हम आगे करेंगे, ऐसे कोई भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन हो वेयर देयर इज दिस टाइप ऑफ फेडरलिज्म सिस्टम इज प्रैक्टाइज, तो वहाँ पे उनकी स्टेट गवर्नमेंट्स और उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट को व्हाट इज द राइट टू डू, व्हाट आर देयर राइट्स एंड पावर्स, वो भी डिफाइन किए गए होते हैं। वो अलग अलग डिफाइन किए गए होते हैं। कहाँ पर किए गए होते हैं, दे आर डिफाइंड एंड एक्सप्लेन्ड इन द रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दैट कंट्री, ठीक है। जैसे अमेरिका है तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में होगा, इंडिया है तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया होगा, इंग्लैंड है तो इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन में होगा कि भाई सेंटर क्या कर सकता है, स्टेट क्या कर सकती है, ठीक। उसके बाद है नंबर 4, फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलेटरली चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। बेटे जब आपने याद, पहले रीड तो सारा करना है, बट क्वेश्चन में लिखने के लिए सारा इज नॉट पॉसिबल, तो एक एक लाइन फर्स्ट लाइन आप ले सकते हो, ठीक है। तो अब ये जो है फंडामेंटल, जो कॉन्स्टिट्यूशन का अगर कोई चेंज करना हो, कॉन्स्टिट्यूशन जैसे इंडिया का है या अमेरिका का है या इंग्लैंड का है, किसी भी जो भी फेडरल स्ट्रक्चर वाले कंट्रीज हैं, तो वहाँ पे अगर इफ एनी चेंज इज टू बी मेड इन द, एनी इम्प्रूवमेंट इज टू बी या अमेंडमेंट इज टू बी मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो अकेली गवर्नमेंट नहीं कर सकती है कोई भी, ना तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले उसको कर सकती है, ना ही कोई स्टेट की गवर्नमेंट कर सकती है। जैसे महाराष्ट्र की या गुजरात की गवर्नमेंट कहे कि हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात को बदलना चाहते हैं, तो उनके चाहने से कुछ नहीं होगा, दे कैन नॉट डू एनीथिंग। ऐसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट कहे कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में ये वाला चेंज करना चाहते हैं, तो उनके भी चाहने से कुछ नहीं होगा। उसके लिए फिर कोई भी चेंज करना है, कोई अमेंडमेंट करनी है, तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के भी उनका कंसेंट चाहिए, एज वेल एज कंसेंट, कंसेंट मतलब सहमति चाहिए, कंसेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स ऑल्सो। तो दोनों की सहमति होनी चाहिए, दोनों के सलाह से, दोनों के मिले जुले जेस्चर से ही काम हो सकता है, इंडिविजुअली कोई नहीं कर सकता। Then next है number 5 point, courts have the power to interpret the constitution and powers of the different levels of government। अच्छा, इन केस ये पॉइंट आता है कि अगर किसी बात के ऊपर दोनों गवर्नमेंट्स में कोई डिस्प्यूट हो जाए, कोई झगड़ा हो जाए, या झगड़ा इन द सेंस वो सच में लड़ाई झगड़ा नहीं, लड़ाई झगड़ा इन द सेंस कि भी किसी बात पे दोनों की कंसेंट नहीं हो पा रही है, एक बात पे सहमत नहीं होते हैं स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंटर, तो फिर देन दे कैन गो टू कोर्ट। इफ़ यू रिमेंबर 8th क्लास में आपने जुडिशरी चैप्टर एक पढ़ा था, तो उसमें एक पढ़ा था जुडिशियल, उसमें आपने क्या था, फंक्शंस ऑफ द जुडिशियल सिस्टम, या फंक्शंस, या कुछ फंक्शंस करके था, हाँ, फंक्शंस ऑफ द जुडिशियल सिस्टम। तो उसमें एक आता था कि इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, सो देन जो कोर्ट्स होते हैं, सुप्रीम कोर्ट होता है, वो डिसाइड करता है दोनों के बीच का बात को, वो चेक करता है। तो ऐसे ही है यहाँ पे, वही बात है कि अगर किसी बात पे सहमति ना हो, तो दोनों गवर्नमेंट्स जो हैं, दे कैन गो टू द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री, दैट इज सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर, हैज़ द राइट, हैज़ द ड्यूटी टू एक्सप्लेन द and interpret the meaning of the powers given in the constitution। भी झगड़ा किस बात पे हुआ, समझ नहीं आई, यही बात पे झगड़ा होगा ना, एक स्टेट गवर्नमेंट कुछ और उस बात का मतलब निकाल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसी बात का कोई और मीनिंग निकाल रही है, तो फिर इसी बात पे वो डिसकंसेंट हो जाता है। तो उसको फिर चेक कौन करता है, उसको ठीक कौन करता है, दैट इज द जुडिशियल सिस्टम, ठीक है। जो कंट्री का जुडिशरी है, वो उसको फिर कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ भी दिया हुआ है उसको एक्सप्लेन करती है, समझाती है। इंटरप्रेट का मतलब समझाना, एक्सप्लेन करना कि भी हाँ, यहाँ पर आप गलत हो, यहाँ पर आप गलत हो, या ऐसे इस काम को किया जा सकता है, तो ये जुडिशरी का काम है। मतलब वो एक अंपायर होता है ना, जैसे गेम में अंपायर, मतलब वी कैन से रेफरी, जो बीच में होता है, जो किसी टीम का नहीं होता, दोनों के साथ जहाँ जो जिसकी गलती है उसको बताता है, जिसने जो स्कोर किया होता है वो बताता है, बिना किसी की साइड लिए। तो ऐसे ही कोर्ट का काम भी यही होता है कि बिना किसी की साइड लिए, विदाउट टेकिंग साइड टूवर्ड्स सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, वो अपना अपने बेसिस के ऊपर अपने कॉन्स्टिट्यूशन का जो भी सही मीनिंग है उसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है।
उसके बाद है सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। ये इंटरेस्टिंग है कि दोनों गवर्नमेंट्स, सेंटर और स्टेट की, उनको मनी कहाँ से आएगा, इतने सारे काम करने होते हैं डेवलपमेंट के, स्टेट को चलाना, कंट्री को चलाना, तो फ्रॉम वेयर विल दे गेट मनी, पैसा कहाँ से आएगा ना, उसके बिना तो काम नहीं चल सकता। तो उसका भी जो पावर्स है, फाइनेंशियल पावर्स, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं कि कौन सी स्टेट कौन सा टैक्स लगा सकती है, कौन सी स्टेट कहाँ से इनकम अर्न कर सकती है, कौन से टैक्स को लोगों पे लगा सकती है, कितना लगा सकती है, एवरीथिंग इज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। देन नेक्स्ट इज सेवंथ पॉइंट, फेडरल सिस्टम हैज ड्यूअल ऑब्जेक्टिव। ड्यूअल होते हैं टू, ट्विन, दो इकट्ठे ऑब्जेक्टिव होते हैं किसी भी फेडरल सिस्टम के। कौन कौन से, प्लीज अंडरलाइन, टू सेफ गार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री, और आगे दिया ना कॉमा लगा के, वाइल एट द सेम टाइम, यहाँ पर आप नंबर 2 कर सकते हो वाइल की जगह, एट द सेम टाइम एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। ये वेरी इंपॉर्टेंट कि दो ऑब्जेक्टिव होते हैं जो इकट्ठे ही पूरे करने हैं, साइमल्टेनियसली उनके ऊपर काम करना होता है। एक तो कंट्री की यूनिटी को बना के रखना, इंटेग्रिटी, यूनिटी, ये नहीं कि कंट्री के सारी स्टेट्स अलग अलग वो मुंह बना के कहें कि नहीं जी हम तो अलग होना चाहते हैं, हम अलग होना, ऐसा नहीं पॉसिबल है। एक काम होता है फेडरल स्ट्रक्चर का कि कंट्री को जोड़ के रखना, हर तरह से उनको आपस में इकट्ठे करना, यूनाइट करना, यूनिटी की फीलिंग को इम्प्रूव करना, बढ़ाना। जैसे हम सारे कहते हैं, जब भी हम भारत की बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं, तो हम सारे ये कहते हैं हमारा कंट्री है ना, हमें उसके साथ बहुत अटैचमेंट फील होती है, हमें अपने कंट्री के ऊपर प्राउड होता है। हम कभी सोच ही नहीं सकते कि हम, हमारा कोई अलग एग्जिस्टेंस है हमारे कंट्री के बिना, है ना, हम सोच ही नहीं पाते हैं। तो ये क्या है, ये फीलिंग को डेवलप करना है, इसको इम्प्रूव करना है, इसको स्ट्रेंथन करना है कि हमारा एक कंट्री है, वी आर ऑल यूनाइटेड अगेंस्ट एनी वी कैन से अटैक बाय द अदर कंट्री। किसी भी तरह का अटैक हो, कल्चरल अटैक हो या डिफेंस वाला अटैक हो, है ना, वेपन्स वाला अटैक हो या पॉलिटिकल अटैक हो, किसी भी तरह के अटैक के अगेंस्ट हम सब इकट्ठे हैं, वी ऑल आर इंडियंस। और उसी के साथ साथ हमारी जो रीजनल डाइवर्सिटी है उसको भी एकोमोडेट करना। रीजनल डाइवर्सिटी का मतलब भी हम सब के जितनी भी स्टेट्स हैं आप देखते हो, जैसे वी कैन से, लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ साउथ इंडियन स्टेट्स, केरला है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, है ना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, ये सब स्टेट्स, अब उन उन लोगों का रहन सहन थोड़ा अलग टाइप का है, उनका कल्चर थोड़ा सा अलग है, और हमारा इधर पंजाब है, हरियाणा है, यूपी, बिहार, यहाँ पर थोड़ा सा कल्चरल सिस्टम कुछ अलग है, मतलब हम अलग अलग तरीके से सेलिब्रेशंस करते हैं, है ना, रहना सहना थोड़ा अलग है। तो इसका मतलब जो हमारी रीजनल, रीजनल मतलब रीजन वाइज डाइवर्सिटी मीन्स जो डिफरेंसेस तो नहीं कहेंगे नेगेटिव सेंस में, नहीं, पॉजिटिव सेंस में, जो डिफरेंट वेज हैं हमारे, है ना, डाइवर्सिटी होता है ना जिसको से इन हिंदी विभिन्नता, अलग अलग तरह का सिस्टम होना, तो उसको भी रिस्पेक्ट करना है। अकोमोडेट मतलब उसकी भी रिस्पेक्ट हो, कि हर एक के कल्चर की भी रिस्पेक्ट हो, साथ ही साथ हमारा पूरे कंट्री को भी इकट्ठा लेके चले, ठीक है। उसके बाद है फिर लास्ट लाइन में प्लीज अंडरलाइन, an ideal federal system has both aspects, mutual trust and agreement to live together. म्यूचुअल होता है सबका एक दूसरे के ऊपर बिना किसी कंडीशन के फेथ होना, भरोसा होना, ठीक है। जैसे हमारे मान लो वी गेट इंजर्ड, लेफ्ट हैंड हमारा इंजर्ड हो जाए, कोई चोट लग जाए, तो राइट हैंड एकदम आके उसको टच करता है, उसको पकड़ता है, उसको प्रेस करता है, उसको ऐसे ऐसे हिलाता है, ठीक करने की कोशिश करता है उस पेन को, है ना। तो राइट हैंड को किसी ने बोला तो नहीं था कि जाओ लेफ्ट हैंड को पकड़ो, उसको हेल्प करो, अपने आप ही वो राइट हैंड का एक्शन अपने आप सामने आता है, दैट मीन्स म्यूचुअल, अंदर से अपने आप ही होता है, फीलिंग आती है। तो ऐसे ही फेडरलिज्म में यही सबका सेंटर हो, स्टेट हो, सारे जितने भी लोग हैं, जितने भी लेवल्स के ऊपर गवर्नमेंट्स है, सबका एक ही काम है कि आपस में अपने फेथ को, अपने ट्रस्ट को बनाना, एज वेल एज अरेंजमेंट एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, कि भी हमने इकट्ठे रहना है, वी आर नॉट सेपरेटेड, वी आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम एनी वन, वी ऑल आर इंडियंस। इस तरह की, इंडियन या कोई भी कंट्री हो, जो भी कंट्री उसका नाम, अमेरिका के लोग होंगे तो वो कहेंगे वी ऑल अमेरिकन्स हैव टू लिव टुगेदर, इंडिया के है तो हम कहेंगे वी ऑल इंडियंस हैव टू लिव टुगेदर, जो भी देश है वो अपना अपना नाम लेकर तो इकट्ठे रहना, ठीक है। फिर उसके बाद है लास्ट में ये है, ये पैरा में दिया हुआ है कि यह बात में आपने अंडरलाइन कर लेना है कि अब इसमें होता है कि दो तरीके से ये काम हो सकता है। एक है फर्स्ट रूट, यहाँ सेंटर में करके फर्स्ट रूट है इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर, मतलब दो टाइप की फेडरेशंस हो सकती हैं इन दिस पैरा, इट हैज बीन टोल्ड। एक होती है कमिंग टुगेदर फेडरेशंस, एक होती हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस, ठीक है। तो प्लीज अंडरलाइन, कमिंग टुगेदर फेडरेशंस होती हैं, यहाँ लास्ट में करके अंडरलाइन एग्जांपल ये हो, यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट रूट जो है, यहाँ करके अंडरलाइन कर लीजिए एक बार,
फर्स्ट रूट इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म ए बिगर यूनिट। मतलब जब स्टेट्स जो होती हैं वो कहती हैं कि हम इकट्ठे मिलके एक कंट्री बनाते हैं, जैसे हम सारे जितने भी मीटिंग में लोग हैं हम सारे कहें कि हम इकट्ठे मिलके अपना कंट्री बनाते हैं, आप मैं हम सब अलग अलग स्टेट्स हैं, हम इकट्ठे होके कहें कि हमें अलग अलग नहीं रहना, हमें एक दूसरे के साथ मिलके हम जुड़ते हैं और हम अपना एक कंट्री बनाते हैं और उसमें हम सारे रहेंगे। तो इस तरह की अगर फेडरेशन बनाई जाती है, फेडरल सिस्टम अडॉप्ट किया जाता है, तो देन इट इज़ कॉल्ड कमिंग टुगेदर। अपनी विश से, अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से सारे लोग इकट्ठे मिलते हैं। तो ऐसे कंट्रीज का एग्जांपल है अमेरिका का, एग्जांपल है स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, यहाँ पर लोग स्टेट्स ने इकट्ठे होकर अपना फेडरेशन बनाई है कि हम सब अपने एक सेंट्रल गवर्नमेंट चाहते हैं, हम स्टेट्स उसके साथ मिलके काम करेंगे। तो मतलब मर्जी होगी उनकी। दूसरा है लास्ट में करके दिया हुआ है, यू कैन सी यहाँ लास्ट में, प्लीज सी सेकेंड पैरा, नेक्स्ट पैरा, ये वाला पैरा। यहाँ है सेकेंड रूट। यहाँ क्या है, लार्ज कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड नेशनल गवर्नमेंट। इंडिया, स्पेन, बेल्जियम आर एग्जांपल्स ऑफ होल्डिंग टुगेदर। दूसरा सिस्टम होता है होल्डिंग टुगेदर। तो अब वर्ड से क्लियर हो रहा है, होल्डिंग टुगेदर का मतलब ये किसी ने जब पकड़ा होता है जब किसी चीज को। तो यहाँ पर कौन होल्ड कर रहा है, एक होती है वेरी पावरफुल सेंट्रल गवर्नमेंट, वो अपनी स्टेट्स को अपने साथ होल्ड करके रखती है, पकड़ के रखती है, जोड़ के रखती है उनको अपने साथ में। ठीक है, तो जैसे हमारे यहाँ इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंटर ने सारी स्टेट्स को अपने साथ होल्ड करके रखा हुआ है। ऐसे ही स्पेन में है, यही दिया ना, हाँ, स्पेन और बेल्जियम कि सेंट्रल की गवर्नमेंट ने अपने साथ बाकियों को जोड़ के रखा हुआ है। तो ऐसी जो फेडरेशंस होती है या फेडरल सिस्टम होता है, दैट इज कॉल्ड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस। ठीक है, तो दो सिस्टम हो गए, एक होता है कमिंग टुगेदर जिसमें स्टेट्स अपनी मर्जी से ज्वाइन करती हैं सेंटर को या क्रिएट करती है सेंटर को, और दूसरा होता है जिसमें सेंटर पहले मेन होता है, वो अपने आसपास जो भी स्टेट्स होती है उनको अपने साथ जोड़ के रखता है। ठीक, उसका एग्जाम्पल है इंडिया। तो अभी तक आपने, नाउ यू विल रीड अप टू दिस पेज,